relation between electrostatic force and gravitational force and did some numericals on the basis of electrostatic force and quantization. Okay, today let's do some more numericals on the basis of electrostatic or the chapter of electrostatic. Okay, so starting with the first question. First question আমি বলছি, first question the amount of charge passing through a conductor is 5 coulomb. Sorry, is 9.6 coulomb. Then find the number of electron flowing through it. Solution करबे यार. Question display होची तळे. The amount of charge passing through a conductor. Amount of charge means given कोन देछि को. Our given data amount of charge means कोन q equals to देछि 9.6 coulomb. 9.6 coulomb. Okay. Then find the number of electrons. Number of electrons that means कोन है हमरा n question mark. Find the number of flowing through it. So our answer कोन होबो according to quantization of charge, according to quantization of charge, q equals to n e. That implies n equals to q upon e. Correct? q रो वैल्यू कितने दिया हमको 9.6 कूलम divided by e रो वैल्यू कितने दी? e रो वैल्यू हम जानते हैं जो 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, so 1.6 और 9.6 टोटल कितना है? 6 हो जाएगा. तो 6 into 10 to the power minus 2 पड़े जाएगा कितना? So 10 to the power plus 19. Okay, therefore 6 into 10 to the power 19 coulomb, 19 number of electrons passing through it, passing through the conductor, okay, and answer मिलेगा इधर, है q equals to कौन फॉर्मूला पढ़ला? n. q equals to n फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन का क्वेश्चन दा. q means कौन? q means charge, n माने number of electron passes, e means कौन? Charge of electron. and समस्त मन को charge of electron केतना छै हमरा 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. हैला एबे नेक्स्ट क्वेश्चन में जिबा. ए क्वेश्चन देखो पॉज मार के समझ देखि देबो. नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा हमें. Next question is the magnitude of Coulomb's force between two charges separated by a distance r is F Newton. If distance between them is doubled, what will be magnitude of force? एटे सॉल्यूशन करबा हमें क्वेश्चन नंबर 2 रो सॉल्यूशन करबा. तो before solving the question, let's discuss about the question. The magnitude of Coulomb's force means Coulomb's force is between two charges separated by distance r is F Newton. dita charge दिचे हमरो dita charge भितर केते अछि फोर्स हम सपोज एटा dita charge एटा होछ हमर dita charge एटा होछ गोटे q1 charge. okay, at some distance एटा कोन दिचे हमको q2 charge दिछि. एटा होछ हमरा q2 charge केते डिस्टेंस दिछि हमको r दिछि. for this condition for r distance the force is केते दिछि हमको force दिछि F Newton. Okay, next proposition है if the distance between them is doubled, then what will be the magnitude of force? तो ये जो distance अछि चार्ज सिमिलर रहेगा distance और डबल लेजिबो ताले what will be the force. Okay, ताले सेकंड केस कोन मानिबो एटा केस 1 रे हम देछि कोन r distance रे केते अछि force टा F अछि. Okay, से केस 2 बता कहबा. तो केस 2 रे हमरो चार्ज एज वेल एज केते अछि रिप्ले q1 अछि डिस्टेंस केते हे अछि डबल हे अछि. तो डिस्टेंस डबल हे अछि केते जेबा हमरा चार्ज q2 अछि बट ए डिस्टेंस डबल हे केते गेला को r dash हे गेला. अब r dash इक्वल टू कोन हो r dash इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन दैट इज 2r. ठीक अछि पॉइंट बुझा पछेटा एटा अछि r डिस्टेंस एटा अछि डबल डिस्टेंस कोन 2r. सो 2r को डिनोट करले हम
केते r डैश रिटर्न करले सो एठी जो फोर्स हो से फोर्स ता केते हो से हमको आस्किंग अछि क्लियरली बुझा पछना क्वेश्चन ता r डिस्टेंस रे 1 अछि 2r डिस्टेंस रे केते फोर्स अछि हमको बाहर करबा पे कहछि ओके क्वेश्चन बुझा पड़ला बे तो देखबा आगे we know F equals to formula करा F equals to formula is K Q1 Q2 upon R square Q1 Q2 upon R square that implies F proportional to कौन हैला एटे आपको नाम देबा ना हमें एटे जो फोर्स आसे से फोर्स को हमें F dash बोली नाम देबा हला एटे F हला एटे जो फोर्स आसे से फोर्स रो सपोज हमें कौन नाम देले एटे F dash रो नाम देले F dash नाम देले so F equals to formula F proportional to कौन हैला 1 upon R square हैला ठीक अछि बोले 1 upon कौन आसला R square इक्वेशन नंबर आपको दे देबी मोबे 1 similarly F dash equals to कौन आजिबो F dash proportional to कौन आसीबो एटे 1 upon R dash square 1 upon कौन आसीबो R dash square इक्वेशन नंबर केते हैला 2 होइजिबो ठीक रे बुझा पछना जिनसटा कोन कहले जेतबेले r थिला ता ऊपर फोर्स थिला एंड द रिलेशन इज F proportional to 1 by R square जेबे F dash हे जाउची माने हमर डिस्टेंस ता कोन डबल हे जाउची R dash हे जाउची सो फोर्स चेंज हे जिवो F dash proportional to कोन आसला 1 by R square ओके आकु ना चलो आकु ना देबा हमें F1 equals to F दे दबा आ फोर्स F2 केते अछि हमको आस्किंग अछि क्लियरली बुझा पड़ला ना बे F1 F F2 जति गेला सो एडे हम चेंज कर दोछि F1 एडे गेला हमरा F2 कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 comparing equation 1 and 2 1 and 2 में कंपेयर करबे कोन आसीबो ना F1 by F2 equals to F1 by F2 equals to 1 by R2 square R square divided by 1 by R1 square R dash square so that कोन आसीबो R dash square by R square ठीक है ना that implies F1 upon F2 equals to कोन आइबो एटे R dash रो वैल्यू केते छै हमको 2R दिछि सो एटा गेला 2R square by केते जिवो एटा हमरो R square और that implies एटा केते हो 2R माने एटा कोन जिवो 4R square by केते जिवो R square जिवो R square cancel कोन आछला एटे ना F1 equals to 4F2 F1 equals to आछला 4F2 और that implies F2 equals to कोन जिवो F2 equals to F1 by 4 okay F1 by 4 therefore F2 equals to F2 माने कोन है second force equals to F1 केते छी हमरा F1 वैल्यू केते F ना F1 equal to F by 4 that means एटे कोन आंसर आछला हमको F2 means कोन हमरो ना सेकंड केस ऑफ फोर्स ता F means कोन हमरो फर्स्ट केस ऑफ फोर्स ता तो सेकंड केस ऑफ फोर्स तले हम डिस्टेंस को डबल कर दबा डिस्टेंस को हम डबल करबा सो हम फोर्स केते जिवो 4 टाइम्स रिड्यूस हे जिवो डिस्टेंस फोर्स कोन होला 4 टाइम्स रिड्यूस होला ओके तो लिख देबा ये therefore the force decreases by 4 times क्लियरली बुझा पड़ला ना एटा ओके एमते क्वेश्चन देखो एबे चलो पॉज मारि आपको देखि दिबो समझते नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जुड़ा आबे जोटा भी डाउट होछ हम आराम रे पूछे परबो क्वेश्चन नंबर 3 को आसला Question number 3 कौन अछि a glass rod rubbed with silk is gained a charge of plus 1.6 into 10 to the power minus 12 coulomb. What is the charge on the silk? Glass rod का संगे रब होछि सिल्क संगे रब होछि तो ग्लास रड रो केते चार्ज हला प्लस 1.6 into 10 to the power minus 2 coulomb हला तो सिल्क रो केते होबो ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 रो सॉल्यूशन देखिबा सपोज पले एटा होछ हमरा ग्लास एटा कोन हमरा ग्लास का संगे रब होछि
ग्लास सिल्क संगे रब होची हला तो एटा हला सिल्क संगे रब हला इनिशियली ग्रीजा कोन थिला को न्यूट्रल थिला इनिशियली कोन थिला न्यूट्रल थिला सपोज आमे जानछु अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन according to law of according to conservation of charges कि गोटे बॉडी थर +5 कूलम हबो अनदर बॉडी कोन हबो -5 कूलम हबो दीटा बॉडी न्यूट्रल अछि तो ये 0 ये भी कोन अछि 0 सपोज दीटा जब हम रब करबा रब करले गोटे पॉजिटिव हबो अनदर नेगेटिव चार्ज हबो तो गोटे जेति की पॉजिटिव हबो आ गोटे कोन हबो सेम अमाउंट रो नेगेटिव चार्ज हबो सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमर क्लास कोन अछि की चार्ज अछि पॉजिटिव चार्ज अछि एंड दैट इज प्लस 1.6 into 10 to the power -12 coulomb 10 to the power -12 coulomb so our silk कोन हो silk negative charge हो but amount should be same that is 1.6 into 10 to the power -12 coulomb clearly बुझा पड़ला ना एटा ग्लास पॉजिटिव वाला silk नेगेटिव वाला ग्लास जति की अमाउंट रो पॉजिटिव वाला silk जति की अमाउंट रो नेगेटिव वाला so लिख दो कोन therefore the amount of charge of silk is -1.6 into 10 to the power -12 coulomb हैला ना ए क्वेश्चन बुझा पड़ला क्वेश्चन नंबर 3 देखबा क्वेश्चन नंबर 4 को आसबा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 calculate the coulomb's force between a proton and an electron separated by 0.8 into 10 to the power -15 meter calculate the coulomb's force means force asking अछि between a proton and an electron separated by 0.8 into 10 to the power -15 meter अच्छा ए क्वेश्चन रे फर्स्ट सिनेरियो कोन अछि सिनेरियो कहै कि दुईटा गोटे इलेक्ट्रॉन अछि एटा कोन हमर को एटा अछि इलेक्ट्रॉन माने ई हैला डिस्टेंस रे सम डिस्टेंस रे कोन अछि एटा को हमर प्रोटॉन अछि मींस कोन एटा को p केते डिस्टेंस सेडे हम गिवन अछि r r मान केते छै हम 0.8 into 10 to the power -15 meter 10 to the power -15 meter देछि ओके अच्छा ई रो चार्ज केता हम जानि छथि ना ई रो चार्ज होछि माने इलेक्ट्रॉन होछि -1.6 into 10 to the power -19 coulomb ओके प्रोटॉन रा कोन पावर पॉजिटिव दैट इज प्लस 1.6 into 10 to the power -19 coulomb क्लियर बुझा पड़ला प्रोटॉन आ इलेक्ट्रॉन एटा नेगेटिव चार्ज एटा पॉजिटिव चार्ज बाकी मैग्नीट्यूड सेम अछि आ तपर कोन नै छै हम गटे डिस्टेंस कम गिवन अछि तो डिस्टेंस गिवन अछि मींस कोन बुझा छै हम भीतर केते अमाउंट रो फोर्स अछि हम आस्किंग अछि तो क्वेश्चन ता बुझा पड़ेला चलो सॉल्यूशन करबा सॉल्यूशन गिवन कोन दै छी को गिवन हम दे दै छी q1 equals to -1.6 into 10 to the power -19 coulomb q2 given अछि plus 1.6 into 10 to the power -19 coulomb r given अछि 0.8 into 10 to the power -15 meter all are in SI unit hence no problem asking कोन अछि को फोर्स हमको asking अछि क्लियर बुझा पछ ना पिले एबे नै देखबा according to Coulomb's law F equals to formula कोन होइबो 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon केते r square ए Coulomb's law formula hence that implies F equals to 1 by 4 pi epsilon value केते हबो 9 into 10 to the power 9 into q1 रो value केते छै हमको -1.6 हमें
जेतु मैग्नीट्यूड पचरची हमको सो मैग्नीट्यूड पचरची मींस आमे नेगेटिव साइन की पॉजिटिव साइन नेबानी जैसे डायरेक्शन पचरबो सेते बेले आमे नेगेटिव पॉजिटिव साइन नेबा एबे मैग्नीट्यूड बाकी अमाउंट अछि केते फोर्स अछि हेंस वी डोंट टेक नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन खाली हमें मैग्नीट्यूड लिखबा कितना बेटे 1.6 into 10 to the power -19 अगेन q2 रो वैल्यू केते छि सेटा का into 1.6 into 10 to the power -19 whole divided by r square value r कितनी थी 0.8 into 10 to the power -15 square हैला आको एबे हम सॉल्व करबा आफ्टर सॉल्विंग ओके और सॉल्व कला परे तमे कोन मिलबे तमर वैल्यूटा खाली आंसर लिखि होची तो एबे सॉल्व कला परे तमर आसीयो वैल्यू 360 न्यूटन 360 न्यूटन ओके 360 न्यूटन पर आसला एटा जे तमे मैग्नीट्यूड कथा कहबो क्लियरली बुझा पड़ला हैं ठीक तो एटे लिख दबा therefore the force between electron and proton is found to be 360 न्यूटन एला क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया से बुझा पड़थिबो पिले क्वेश्चन किछि नै रे सब सहज क्वेश्चन जाग अछि एमथि क्वेश्चन आसीबो हम लिखबा क्वेश्चन नंबर 5 आनिबा काले 5 रे कोन ना किछ मिल जिवो हमकु ओके क्वेश्चन 4 को जिबा क्वेश्चन 4 में कोन देछि क्वेश्चन 4 देछि व्हिच इज बिगर ए कूलम और ए चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन चार्जेस फ्रॉम वन कूलम ऑफ चार्ज तो क्वेश्चन मीनिंग होछि कि गोटे कूलम टा बड़ माने गोटे कूलम चार्ज बड़ ना गोटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज बड़ इलेक्ट्रॉन रो चार्ज केते अछि हमर -1.6 into 10 to the power -19 कूलम एटा बड़ ना 1 कूलम चार्ज बड़ जो दीटा क्वांटिटी देछि से भितर किए बड़ बोली पचाछि हम ओके व्हिच वन इज बिगर एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि in 1 coulomb charge how many electrons are there in 1 coulomb charge how many electrons are there ओके क्वेश्चन बुझा पड़ला तो दीटा पार्ट रे हम क्वेश्चन देछि से तो बड़ बड़ करे हम सॉल्व करबा फर्स्ट पार्ट को आसबा फर्स्ट पार्ट रे देछि सॉल्यूशन देखो सॉल्यूशन करबा तो एटे डेफिनेटली तुम कोन हम कहला 1 coulomb is bigger 1 coulomb charge is bigger than charge of one electron bigger than charge of one electron hello second देखबा सेकंड पार्ट को जासबा एटा पार्ट 1 एटा पार्ट 1 पार्ट 2 जासबा पार्ट 2 मींस कोन कहै हाउ मेनी electrons are there in 1 coulomb of charge so according to the question q किते छै q means 1 coulomb of charge दिछि कोन आस्किंग अछि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आस्किंग अछि e रो वैल्यू वी नो दैट इज 1.6 into 10 to the power -19 coulomb hence q equals to formula कोन we know q equals to ne that implies n equals to formula कोन आसीबो q upon e q रो वैल्यू केते अछि 1 coulomb by e रो वैल्यू केते अछि 1.6 into 10 to the power -19 coulomb and after solving this the answer is 6.25 the answer is 6.25 into 10 to the power 18 into 10 to the power 18 therefore in 1 coulomb of charge 1 coulomb of charge 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons present okay
बुझा पड़ले एबे चलो एबे देखिबा ए क्वेश्चन ता मोह हिसाब से तुम सेकंड पार्ट बुझै दिबो सेकंड पार्ट तुमको चार्ज गिवन अछि number of electron asking अछि so number of electron you can find by quantization of charge okay but first part is like 1 coulomb is bigger than charge of 1 electron eta केम देला ना देखो 1 coulomb charge केते 1 coulomb charge of 1 electron रे गोटे इलेक्ट्रॉन रे एई जो पार्ट अछि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन केते इलेक्ट्रॉन अछि देखो ना गोटे इलेक्ट्रॉन अछि आ 1 कूलम रे केते इलेक्ट्रॉन अछि को 1 इलेक्ट्रॉन अछि 6.25 into 10 to the power 18 अछि सो से पचाछ कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ ना 1 कूलम बड़ ना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रे गोटे इलेक्ट्रॉन अछि 1 कूलम रे एति इलेक्ट्रॉन अछि तो किए बड़ रहबो को एटा हबो हमर कोन बिगर ओके बहुत बिगर तो नहीं बहुत गाइन ना 10 to the power 18 टाइम्स रे बुझि पड़छ ना बोले केते बड़ होइबो तो क्वेश्चन ता हमर ए टाइप रो सॉल्व करा गला हैला चलो एबे क्वेश्चन 5 रे को लिखबा Question 5 a charge q is placed at the center of line joining two equal charges capital Q so that the system of three charges will be in equilibrium if q equals to minus q by 4 क्वेश्चन से कहछि कि दुटा चार्ज अछि क्वेश्चन नंबर 5 ना एटा क्वेश्चन नंबर 5 कहछि कि capital Q एटा अछि and similar charge is capital Q similar charge अछि एबे ताकर सेंटर रे कोन अछि गोटे स्मॉल q चार्ज अछि सेंटर कोन अछि स्मॉल q चार्ज अछि तो से कहला कि ए जो चार्ज अछि जेतोले हम सेंटर रे चार्ज को प्लेस करबा सेंटर रे चार्ज को प्लेस करले तीन जगह चार्ज कोन रहबो इक्विलिब्रियम कंडीशन रहबो व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस कोन ये जोड़ अछि सेट रहबो ये जोड़ अछि सेट रहबो ये जोड़ अछि सेट रहबो ताको कहबा हम इक्विलिब्रियम कंडीशन तो से कहला कि जेतोले q इक्वल्स टू q/q/4 हबो q/q/4 हबो ठीक ना नहीं q q/4 हबो तो से कहछि कि एटा बडा कैपिटल Q एटा बडा कैपिटल Q मझरे बडा चार्ज हम प्लेस करछन्ती सो दैट माने प्रूफ करो कि जेतले -q/4 हबो चार्ज सेतले सब जगह चार्ज कोन रहबो हमरा इक्विलिब्रियम रहबो क्लियरली बुझा पड़ला बे चलो क्वेश्चन करा ऑडियो भाबरे बुझा पड़छबो सॉल्यूशन करबा सो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन एटा ला a पॉइंट ऑफ नाम देबा हमें b ए पॉइंट ऑफ नाम देबा हमें c फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन the net force on at a b and c should be 0 हला एडी देखो प्लस q अछि तो ड्यू एडी चार्ज अछि ना से चार्ज का केतना चार्ज अछि प्लेट को ना एडी चार्ज अछि एडी चार्ज अछि सो दिस चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स फ्रॉम c एंड फ्रॉम b माने या पर फोर्स पड़छि या पर फोर्स पड़छि हला क्वेश्चन टा टिके ट्रिकी अछि तो तुमको के भलो बुझा पड़बो एडी जो चार्ज अछि से चार्ज पर केतना फोर्स पड़छि दीटा फोर्स पड़छि ड्यू टू this charge and due to this charge so there are two forces acting on this charge here also there are two forces acting here like देखो एटा अछि ना चार्ज अछि या पर ये गोटे फोर्स पकोछि या पर ये गोटे फोर्स पकोछि तमने या पर दीटा फोर्स पड़छि या पर भी दीटा फोर्स पड़छि मीन समस्त पर दीटा फोर्स पड़छि बट फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन the net force at abc should be 0 मींस एटा केते रहबो अछि फोर्स केते रहबो अछि 0 एडी फोर्स केते रहबो अछि हमको 0 एडी फोर्स केते रहबो अछि हमरा 0 चाहे को कहबा हमें कि एटा अछि हमरा कोन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्वेश्चन टा फास्ट हम बुझ जाओ क्वेश्चन परे करबा हम कि त सॉल्यूशन कोन हबो एने तुम क्वेश्चन न बुझो त तुम सॉल्यूशन में लाभ नै हैला ना
तो जानि परबे तीनटा चार्ज अछि तीनटा चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन रहबार अछि हमको प्रूफ करबार अछि कि q -q/4 दैट्स इट स्टार्ट करबा है ओके hence force on q charge at b position also 0 सब जगह 0 ଅଛି बोले b रे कोन 0 होबा नै को that implies or therefore एडी केतना फोर्स पड़छ बोले एटा पड़छ फोर्स दिना फोर्स पड़छ that is force due to capital Q plus force due to this small q equals to केतना होबा हमर को 0 केतना होबा हमर 0 होबा नै को अच्छा ए जे डिस्टेंस अछि से डिस्टेंस जब हम नै दिबा r डिस्टेंस नै दिबा एठी हला एटा हैला हमर कोन डिस्टेंस r आ एटा सेंटर अछि माने एटा कोन हिबा हमर r/2 एटा भी कोन हिबा हमर r/2 हला ना हबे नेक्स्ट आसीबा हबे ताले फोर्स ड्यू टू कैपिटल q केता हो फॉर्मूला हमर ना k q बाय केता हो डिस्टेंस केता अछि एटा हमर r² प्लस एटा हो फोर्स q त माने 8 q अछि ए दिना भीतर फोर्स केता हो ना ए दिना भीतर फोर्स हो जिवो कोन ना k q स्मॉल q कैपिटल Q बाय डिस्टेंस केता अछि एटा r/2 ना r/2 रो होल स्क्वायर इक्वल टू केता हो फोर्स ना हमर 0 जिवो क्लियर बुझा पड़ला हां नेक्स्ट आसीबा एठे ना k कैपिटल Q upon r² equals to a term r को बोले कोन हिबो माइनस k q divided by कोन आसला r/2 रो होल स्क्वायर पड़ आसला that implies कोन होबा देखो समझते ना देखो k अछि पड़े कोन अछि हमर k अछि ना सो k कैंसिल एटा कैपिटल Q एटा भी कैपिटल Q कैंसिल खाली कोन रहले को q upon r² equals to कोन होबा एठे माइनस स्मॉल q बाय केतो अछि r/2 रो होल स्क्वायर हले कि नै को होबे that implies एबे देखो q upon r² equals to minus एटा q अछि हमरा q divided by r/2 रो होल स्क्वायर मींस कोन r² upon 4 ना r² upon 4 अछि नै ताले केतो होबो को बोले that implies एडे r² एडे कोन अछि हमरा r² कटि गला रहला कोन हम बाबे q equals to minus 4 टा ऊपर पळे जिवो 4 टा कोन प्लस ऊपर प्लस केते देबो minus 4q और q equals to केते अछि q equals to कोन जिवो minus q by 4 q equals to minus q by 4 this is your answer क्लियर बुझा पड़ला कोन कहछि कहले कि तीनटा चार्ज भितर मझ सेंटर चार्ज कोन अछि ना इन बिटवीन देम अछि आ सब जगह कोन अछि इक्विलिब्रियम रे अछि सो प्रूव करो कि q रो चार्ज ता -q/4 देखो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लेले एटा हला इक्विलिब्रियम प्रूव करि देखले कि स्मॉल q चार्ज केते अछि -q/4 आको रिपीट करि देखो आ जरा बुझा पड़िबो जे न बुझा पड़छि नहले पचाइबो हला नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 बुझिबा से 5 सरला ना 6 बुझिबा 6 रे कोन क्वेश्चन को देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 रे हम पचार कहै what is the force between two small charge sphere having charges of 2 into 10 to the power -7 coulomb and 3 into 10 to the power -7 coulomb placed 30 cm apart in air এটা सिंपल क्वेश्चन पळे आसला किछि बस्ट क्वेश्चन है रे कोन होई छिले सॉल्यूशन करबा हमें सॉल्यूशन बहुत फटाफट बताबा बेसिक जिंस एटा 2 small charge sphere having charges 2 माने दिले स्फीयर अछि एटा बड स्फीयर अछि हला स्फीयर माने गोल बा स्फीयर अछि and at some distance at another sphere अछि let charge of this sphere is q1 charge of this sphere is q2 and distance देछि केते हमको r देछि कोन आस्किंग अछि हमको फोर्स आस्किंग अछि सो सॉल्यूशन करै जेते गिवन देखबा गिवन कोन गिवन अछि कहबे q1 equals to देछि हम केते दिले 2 into 10 to the power
-7 कूलम q2 केते गिवन अछि को q2 गिवन अछि हमर एटे 3 * 10 टू द पावर -7 कूलम r केते गिवन अछि r गिवन अछि 30 सेंटीमीटर गिवन अछि देखो एटे चलो क्वेश्चन करबे एटे 30 सेंटीमीटर कूलम SI रे अछि एटे कूलम SI रे अछि 30 सेंटीमीटर एटा SI रे अछि कि ना एटा CGS रे अछि कना मीटर रे थिले SI एतांदा सेंटीमीटर अछि माने एटा कोन CGS रे अछि सो आ कन्वर्ट करबा तो 30 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 30 इनटू 0 वैल्यू 10 टू द पावर -2 मीटर हे जबो 30 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 30 इनटू 10 टू द पावर -2 मीटर these are the given data and the force is asking a question mark अछि okay according to Coulomb's law according to Coulomb's law force equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by kete r square that implies f equals to कोन बैठको वैल्यू केते लेला 9 into 10 to the power 9 into q1 रो वैल्यू केते अछि 2 into 10 to the power 7 2 into 10 to the power -7 into 3 into 10 to the power -7 3 into 10 to the power -7 whole divided by r square r वैल्यू केते अछि 30 into 10 to the power -2 यानी 30 into 10 to the power -2 होल स्क्वायर r स्क्वायर ना होल स्क्वायर आइला तो केते अछि सॉल्व करिया बराबर काय कहबा f equals to हला f equals to अछि 9 अछि 9 into एटा केते अछि 2 into 3 अछि 2 into 3 को हम कहले 6 कर देले 2 into 3 6 कर देले into 10 पावर केते अछि 9 अछि 10 पावर -7 10 पावर -7 10 to the power 9 आ -7 को रख देले 10 to the power -14 को रख देले divided by 30 रो स्क्वायर केते होबे 30 रो स्क्वायर हेजबो केते 900 हबो 900 into 10 to the power -2 रो स्क्वायर हेजबो 10 to the power -4 हला हम बहुत सिंपली करछि f equals to एटा केते हमर 9 into केते रहले 6 into केते रहले 10 to the power एटा अछि -14 अछि -14 एटा अछि 9 अछि सो 10 to the power कोन रहले देखो -5 रहला 10 to the power -5 क्लियर बुझा पड़छि ना बुझा पड़नी बुझला ना नहीं चलो देखियो आबे डिवाइडेड बाय केते रहबो डिवाइडेड बाय 900 माने कोन एटा 9 into 10 to the power 2 900 900 तो 900 माने 9 into 100 और 9 into 100 माने 10 to the 2 into केते रहला 10 to the power -4 that implies f equals to चलो 9 9 कैंसिल आउट हो गला 6 into 10 to the power एटा केते अछि रे -5 एटा -4 टा ऊपर गले कोन जिवो +4 and 2 टा ऊपर गले कोन जिवो -2 that implies f equals to 6 into 10 to the -5 -2 -7 plus 4 that is -3 न्यूटन क्लियर बुझा पड़ला है केते अछि आंसर हमरा ना 6 into 10 to the power -3 न्यूटन ओके तो therefore लिखबा बे कोन हो therefore the force between two sphere is 6 into 10 to the power -3 न्यूटन दिस इज योर आंसर हला ना क्वेश्चन नंबर केते होला एटा 6 होला एन वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था एटा क्वेश्चन बेसिकली डिस्कस करबा ना ही होगा हमको चलो देखा वाला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन बोला तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 newton. That first bit of question is what is the distance between the two spheres and what is the force on the second sphere due to the first. बड़ा क्वेश्चन है एटा हला ए क्वेश्चन हम करबा क्वेश्चन देछि बुझा पड़ा क्वेश्चन का दीटा चार्ज देछि स्मॉल स्फीयर चार्ज स्फीयर देछि और ताको चार्ज भी दे देछि और फोर्स भी गिवन अछि फर्स्ट बिट से पचाछि ताको डिस्टेंस केते ओके आज हम जहां भी क्वेश्चन करथले हमें सबसे फोर्स बाहर करथले एबे हमें डिस्टेंस बाहर करबा क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक हला एटा देछि उडा चार्ज स्फीयर दिस इज चार्ज स्फीयर having charge q1 and some distance another charge sphere having charge q2 and this is r and this is f. This is the scenario.
Q1 given अछि, F asking अछि, F का कोन अछि, F asking अछि, R भी given अछि, Q2 भी given अछि। चलो फर्स्ट बिट रो सॉल्यूशन करबा हमें। तो फर्स्ट बिट सॉल्यूशन करबा हमें, देखबा फर्स्ट बिट गिवन कोन देछि पर, बोलो भाई गिवन कोन देछि रे, गिवन देछि Q1 equals to 0.4 microcoulomb, देखा 0.4 microcoulomb देछि, microcoulomb means 0.4 in the place of micro we have to place 10 to the power -6 coulomb, micro रो वैल्यू होछि 10 to the power -6 coulomb। सिमिलरली Q2 के देछि, Q2 देछि हमको -0.8 microcoulomb, that implies -0.8 into in place of micro, right, -6 coulomb हैला। तापर फोर्स के देछि ना भीतर, सॉरी फोर्स देछि पहले R आस्किंग अछि हैला, फोर्स के देछि 0.2 न्यूटन देछि, कोन आस्किंग अछि, R आस्किंग अछि हैला ना। क्वेश्चन आबे हां बुझा पड़ा क्वेश्चन ला। चलो क्वेश्चन आबे सॉल्व देखबा आंसर कोन होबा। तो आंसर हे जेबा हमरा we know F equals to formula K Q1 Q2 divided by R square, that implies R square equals to K Q1 Q2 by F को उठने के R उठने पड़ा सही है ना। that implies R square equals to K रो वैल्यू कितने 9 into 10 to the power 9 into Q1 रो वैल्यू कितने 0.4 into 10 to the power -6, Q2 वैल्यू होची 0.8 सॉरी -0.8 into 10 माइनस लिखना तो मैं जो बात समझो 0.8 into 10 to the power -6 whole divided by F रो वैल्यू कितने 0.2 हैला। that implies R square equals to 0.2 एड अछि 0.2 ए 0.4 अछि केतरा एड 2 रहिबो 9 ए सब जगह सॉल्व करबो, तो ए सॉल्व करला पे तुम आंसर तो बाहर जेबो। आंसर should be 144 into 10 to the power -4 एगला अछि कि ताले हमको R स्क्वायर ने हम कोन आस्किंग अछि, R आस्किंग अछि, सो R equals to स्क्वायर चार बटे बोले कोन जेबो रूट ओवर 144 into 10 to the power -4 हैला। that implies R equals to 12 into 10 to the power -2 meter हैला। R रो वैल्यू केते होला 12 into 10 to the power -2 meter हैला, that is 0.12 meter, that is सेंटीमीटर जो करे हम चाहू तार केते होइटा सॉरी एला जो बाहरला 12 into 10 मीटर बाहरला आपको ये u 10 to -2 को हम सब्स्टिट्यूट करबा 0.12 मीटर आसीबो हैला। एबे R वैल्यू क्लियर 0.12 मीटर। सेकंड क्वेश्चन कोइ छै, सेकंड पार्ट का सला ए पार्ट बुझा पड़ैतो। सेकंड पार्ट का सला सेकंड पार्ट से पूछा छै कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फास्ट, what is the force on the second sphere due to fast कितो हुए। सेकंड पार्ट का सला we know Coulomb's force obey Newton's third law of motion, Newton's third law of motion एटा प्रॉपर्टी ना कुआ जला ना Coulomb's force ता Newton's third law of motion को फॉलो करछि। तो Newton's third law of motion कोन कि Newton's third law of motion कोन कि action equals to reaction, action equals to reaction, ओके। action equal to reaction means कोन एटा हम ताको इंप्लीमेंटेशन करबा कि तो Q1 Q2 ऊपर फोर्स जति की पकोछि Q2 भी सेम फोर्स कोन पकेबो Q1 ऊपर अप्लाई करबो, सेटा ता मीनिंग होछि एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। Q1 Q2 ऊपर एक्शन जति की देबो Q2 Q1 Q
Q2 Q1 ऊपर सेतिक रिएक्शन हबो सो आमे जो फोर्स ता बाहर करले से फोर्स ता हमर केते देदिला गिवन केते अछि फोर्स ता ना हम मित्र फोर्स ता अछि 0.2 न्यूटन दैट मींस एपटे केते फोर्स आछि 0.2 न्यूटन आछि एपटे केते फोर्स आछि 0.2 न्यूटन आछि सेम नै एटा का लॉजिकल क्वेश्चन ता तो लिखबा बे तो वी नो एथिक आसला so force on Q2 due to Q1 is same as force on Q1 due to Q2 that is kete habo 0.2 newton very simple question hela na बुझा पड़े क्वेश्चन एटा कोन अछि चल तो एमदी बहुत बड़ा क्वेश्चन अछि बाकी क्वेश्चन सब हमें दे दबा मटेरियल से प्रोवाइड करबा ओके दिस इज फॉर टुडे नेक्स्ट क्लास देखिबा कोन अछि ओके थैंक यू